ایک کہانی میری کتاب مکالمے کا قتل سے۔ میں ہوں خواجہ اشرف۔ کہانی کا عنوان ہے پینشن۔ وہ دیر تک سڑک پر کھڑا آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہا۔ اسے لگا یہ لوگ پہلے جیسے نہیں رہے، اب ان میں پہلے سے کچھ مختلف تھا۔ لیکن کیا مختلف تھا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے اسے کچھ انتظار کرنا پڑا۔ اس انتظار میں اس کا ذہن ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھو گیا۔ یہ بھول بھلائیاں کہاں سے شروع ہوتی تھیں اور کہاں ختم، اس کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ گاؤں کیا تھا، بس چند سو گھروں کا مجموعہ تھا، جس کے ارد گرد چاروں طرف کھیت تھے، دو طرف سیلابی ندیاں تھیں اور دو طرف نہریں۔ یہ نہریں اور سیلابی ندیاں گوروں نے بنائی تھیں۔ گوروں کا خیال آتے ہی اس کا ذہن مار روڈ کی طرف مڑ گیا۔ مار روڈ بھی تو گوروں نے بنائی تھی، اور مال روڈ کے ارد گرد پھیلی عمارتیں، ہائی کورٹ، گورنمنٹ کالج، جی پی او اور میوزیم، کتنی عمارتیں تھیں جو گوروں کے جانے کے بعد بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ مار روڈ پر آتے جاتے لوگوں کو اپنے بنانے والوں کی یاد دلاتی رہتی تھی۔ مار روڈ کی عمارتوں کے بعد اس کا ذہن پھر گاؤں کی طرف چلا گیا۔ چاچا کریمہ دارے میں چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ وہ چاچے کریمے کے پاس نیچے سروٹ کی بنی ایک چٹائی پر بیٹھا تھا۔ بیٹا، گورے بہت اچھے لوگ تھے۔ وہ ہمیشہ ایسے کام کرتے تھے جن سے عام لوگوں کی بھلائی ہوتی تھی۔ ان کے برعکس مسلمان بادشاہ ہمیشہ اپنے لیے محلات اور 12 دریاں بناتے تھے۔ چاچا کریم ان پڑھ آدمی تھا، جوانی میں ریلوے میں ملازم تھا۔ اب اسے ریلوے سے 35 روپے پینشن ملتی تھی۔ اس کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، سب کے سب شادی شدہ تھے۔ بیٹے تو اس کے ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن بیٹی قریبی گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی۔ وہ سردیوں گرمیوں سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ گھر سے چارپائی اٹھائے دارے میں آتا اور سورج کی آخری کرنوں تک وہیں بیٹھا حقہ پیتا اور آنے جانے والوں کے ساتھ گپ شپ کرتا۔ سردیوں میں وہ اپنی چارپائی ایسی جگہ جماتا جہاں دھوپ براہ راست پڑتی۔ جیسے جیسے دن گرم ہوتا، اس کی چارپائی دھوپ سے درختوں کے سائے کی طرف سرکتی جاتی۔ گرمیوں میں وہ اپنی چارپائی درختوں کی چھاؤں میں بچھاتا۔ زیادہ گرمی ہوتی تو اپنا کرتا اتار لیتا، ورنہ کھلے میں ہونے کی وجہ سے کرتے میں ہونے کے باوجود ٹھنڈی ہوا کے مزے لوٹتا اور حقہ گڑگڑاتا رہتا۔ کاما صبح اسکول جاتا تو دور سے چاچے کریمے کو سلام کرتا۔ چاچا بہت کہتا کہ وہ چند لمحے اس کے پاس رک جائے، لیکن وہ بغیر چاچے کریمے کے پاس رکے اسکول چلا جاتا۔ تاہم اسکول سے واپسی پر وہ فوراً اسکول سے ملے گھر کے کام والی کتابیں اٹھا کر دارے میں چاچے کریمے کے پاس چلا آتا۔ وہ چاچے کے پاس بچھی چٹائی پر اپنی کتابیں رکھ کے اسکول کا کام شروع کر دیتا۔ کام کے ساتھ ساتھ اس کی چاچے کے ساتھ گفتگو چلتی رہتی۔ چاچا جب بھی گوروں کی بات کرتا وہ ہمیشہ چاچے کو تنگ کرتا۔ چاچا، اگر گورے اتنے اچھے تھے تو تم گوروں کے ساتھ ان کے دیس کیوں نہ چلے گئے؟ یہاں دارے میں بیٹھنے کی بجائے لندن میں کسی پارک میں بیٹھ کر حقہ پیتے۔ اوے کامے پتر، تمہیں کیا پتا کہ گورے کتنے اچھے لوگ تھے؟ اب دیکھو نا انہوں نے کیسا انتظام کیا تھا۔ میں ریلوے میں معمولی ملازم تھا، ریل کی پٹریوں پر صاحب کی ٹرالی دوڑاتا تھا، ساری عمر ٹرالی دوڑائی، ہمیشہ صحت مند رہا، کوئی بیماری قریب نہیں آئی۔ اب 85 برس کا ہو کر بھی نوجوانوں سے پنجہ لڑاتا ہوں۔
दिन भर हुक्का पीता हूँ, इज्जत से बुढ़ापा काट रहा हूँ। 35 रुपयों में मेरा और तुम्हारी चाची का भी अच्छा गुजारा होता है। जब से पाकिस्तान बना है और गोरों की जगह काले अंग्रेज हुक्मरान हुए हैं, कोई चीज ठीक नहीं रही। फिर सड़क पर खड़े खड़े उसका जहन चाचे करीमे से सड़क पर दौड़ती गाड़ियों की तरफ मुड़ जाता। धुआं छोड़ती गाड़ियां, वैगनें, रिक्शे, मोटरसाइकिलें और इंसानी टांगों से चलते साइकिल अंधाधुंध सड़क पर दौड़ते चले जाते। वो सब परेशान हाल, किसी न किसी सिमत भागते दिखाई देते। ये सब क्यों भाग रहे हैं? ये सब क्यों पागल हुए जा रहे हैं? आखिर ये थोड़ी देर रुक कर, बस थोड़ी देर, कहीं बैठ क्यों नहीं जाते? कहीं बैठकर हुक्का क्यों नहीं पीते? गपशप क्यों नहीं करते? हुक्के की नया की गुड़गड़ाहट के पीछे उसे फिर चाचे करीमे की आवाज सुनाई देती। अगर गोरे हिंदुस्तान ना आते तो ना रेलवे लाइन होती, ना स्कूल होते, ना कॉलेज बनते, ना लड़के लड़कियां तालीम पाते और ना मुझे 35 रुपए माहाना पेंशन मिलती। मैं फरागत से दारे में बैठकर हुक्का पीने की बजाय किसी आड़त पर बोरियां उठाते अपनी कमर तुड़वाकर कब का मर खप चुका होता। चाचे करीमे की बातें सुनकर उसे लगता कि वो ठीक कह रहा है, लेकिन गोरे गैर मुल्की हुक्मरान थे। वो हिंदुस्तान पर काबिज थे, उन्होंने हिंदुस्तान फतह किया था। सारे हिंदुस्तानी उनके गुलाम थे। गोरों के जाने के बाद हिंदुस्तानी भी आजाद हैं और पाकिस्तानी भी। हिंदुस्तानी आजादी के बाद किस हाल में है इसका तो उसे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी यकीनन बीमार हैं, सब के सब, ऊपर से नीचे तक। ऊपर वाले ज्यादतियां करते हैं और नीचे वाले ज्यादतियां बर्दाश्त करते हैं। ऊपर वालों को ज्यादतियां करते शर्म नहीं आती और नीचे वालों की ज्यादतियां सहते गैरत नहीं जागती। इज्जत और गैरत की ओट से उसे फिर चाचे करीमे के हुक्के की गुड़गड़ाहट सुनाई देती। एक दिन दारे में बैठे चाचे करीमे ने उसे अपने ही गांव का एक वाकया सुनाया था। गांव के चौधरी ने अपने ही एक कम्मी की बेटी के साथ ज्यादती की थी। कम्मी ने गोरे साहब से रोते हुए इंसाफ की दरखास्त की थी। गोरे साहब ने गांव आकर सारे गांव में पंचायत लगाई। उसने सारे गांव वालों से पूछा था कि चौधरी के साथ क्या सलूक किया जाए। सारे गांव का फैसला था कि चौधरी की कम्मी की बेटी से शादी कर दी जाए, सारी जमीन उसके नाम की जाए और वो बाकी की सारी जिंदगी उसका वफादार शोहर बनकर काटे। गोरे साहब ने वहीं पटवारी को बुलाकर चौधरी की जमीन कम्मी की बेटी के नाम की। मौलवी साहब को बुलाकर चौधरी का निकाह उसके साथ पढ़वाया। चौधरी की सारी औलाद उस कम्मी की बेटी से पैदा हुई। किसी ने अलीगढ़ से बीए किया और अब अपने नाम के साथ अलीग लिखता है, और किसी ने केई कॉलेज से एमबीबीएस किया और अब वो डॉक्टर है। अब काले अंग्रेजों के जमाने में रोज लोग मर रहे हैं, कोई भूख से, कोई नंग से। न मरने वालों को शर्म आती है और न उनको जिनकी वजह से मर रहे हैं। वो सड़क के किनारे खड़ा आते जाते लोगों को देख रहा था। गाड़ियां, वैगने और रिक्शे अब भी पूरी रफ्तार से भाग रहे थे। हर कोई दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बेतहाशा दौड़ के बावजूद मंजर में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। इस कदर तेज रफ्तारी के बावजूद मंजर उसी तरह एक जगह खड़ा था। गाड़ियां, वैगने और रिक्शे बदल रहे थे, लेकिन आखिर मंजर के ठहराव से उसकी आंखें पथराना शुरू हो गईं। उसने चंद लम्हों के लिए इधर उधर देखकर अपनी आंखों को पथराने से रोकना चाहा, लेकिन इस फजूल हरकत से उसे कुछ हासिल ना हुआ। गाड़ियां, वैगने और रिक्शे इसी तरह भागते रहे, लेकिन मंजर इसी तरह ठहरा रहा। उसकी आंखें इसी तरह पथराई रहीं, जामदो साकत, किसी तब्दीली के एहसास के बगैर। एक धुआं छोड़ती वैगन का धुआं उसके नथनों में घुसा तो उसे फिर चाचा करीमा याद आया। ये बदबख्त कोई काम ठीक नहीं कर सकते। कामे, हम तो गांव में रहते हैं। तुम लाहौर जाओगे तो देखोगे कि गोरों ने कितना खूबसूरत शहर बनाया था, और अब इन काले अंग्रेजों ने इस शहर का क्या हाल किया है। लेकिन चाचा, लाहौर में तो शाही किला है, बादशाही मस्जिद है,
शालीमार है, 12 दरियां हैं, सब मुगलों ने बनाई थी। उसने चाचे करीमे को लुकमा देने की कोशिश की। चाचे ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए से जवाब दिया, किला बादशाहों ने अपने लिए बनाया था, लेकिन अब ये मुख्तलिफ सोच रखने वालों की दिमागी इस्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। 12 दरियां और शालीमार भी उन्होंने अपने लिए बनाए थे, और बादशाही मस्जिद लोगों को ये याद दिलाने के लिए बनाई थी कि बादलों से ऊपर, सितारों के उस पार, आसमानों से मावरा एक अर्श है, और अर्श पर एक खुदा बैठा है जिसका साया बादशाह सलामत है। 5 वक्त उस अर्श पर बैठे खुदा के लिए जमीन पर सर रखना इसलिए जरूरी है कि उनका सर हमेशा बादशाह के सामने झुका रहे जो इस जमीन पर उस खुदा का साया है। उसकी पतराई आंखें ठहरे मंजर में सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, वैगनें, रिक्शे और साइकिलें देखती रहीं, लेकिन उसका जहन मसलसल चाचे करीमे के साथ मुकालमे में मसरूफ रहा। चाचा मुसलमान बादशाहों से फिर गोरों की तरफ लौट आया था। गोरे अब भी अपने मुल्कों में हर काम करने से पहले अपने अवाम का मफाद देखते हैं। उनकी सारी तगोदो, सोचो विचार और बहस मुबासा इसलिए होता है कि अपने लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, उनके जिंदगी में कैसे बेहतरी लाई जाए। लेकिन उनके ये काले नायबीन हर काम करने से पहले सोचते हैं कि इसमें उनका कितना फायदा है। चाचा प्लीज तुम गोरों को याद करना छोड़ दो। अब तुम्हारी पेंशन के 35 रुपए लंदन से नहीं आते, हुकूमत पाकिस्तान के खजाने से आते हैं। खजाना? उसके मुंह से खजाने का लफ्ज सुनकर चाचे के हुक्के की गुड़गुड़ाहट तेज हो गई। दारे में हवा तेजी के साथ चलना शुरू हो गई। चाचे ने अपनी कमीज पहन ली। सड़क पर गाड़ियां, वैगनें, रिक्शे और साइकिलें पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे, लेकिन मंजर उसी तरह ठहरा रहा। इस दौरान किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पथराई आंखों से देखा, उसके गांव का एक शख्स उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। वो गामे मोची का बेटा लल्लू था। लल्लू, तुम कब आए हो गांव से? कामे ने गामे मोची के बेटे लल्लू को हैरानी से देखते हुए पूछा। क्या गांव में सब ठीक है? सब ठीक है, सिर्फ चाचा करीमा फौत हो गया। दारे में बैठा हुक्का पी रहा था। डाकिये ने खत ला कर दिया। उसने पढ़ने के लिए डाकिये से कहा। सरकारी खत था। खत में लिखा था, हुकूमत का खजाना खाली हो चुका है, अब उसको अदा करने के लिए हुकूमत के पास 35 रुपए नहीं। उसने खत सुना, हुक्के का लंबा कश लिया और ये कहकर चारपाई पर लेटकर आंखें मूंद ली कि जिन काले गोरों के देश के खजाने में अदा करने के लिए पेंशन के 35 रुपए ना हो, वहां जी के क्या करना। गाड़ियां, वैगनें, रिक्शे और साइकिलें सड़क पर वैसे ही दौड़ रही थीं, लेकिन मंजर उसी तरह ठहरा हुआ था। वो लल्लू के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता चल दिया। उस गांव का उसका दिल बोझल था। चाचे करीमे के बगैर गांव का दारा कितना खाली होगा, वो सोच रहा था। फिर उसने देखा चाचा करीमा अब भी दारे में चारपाई पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। गोरे कितने अच्छे लोग थे, वो हर काम लोगों के लिए करते थे, और ये काले अंग्रेज, वो कह रहा था। तो ये थी जनाब पहली कहानी मेरी किताब मकालमे का कत्ल की। समाअत का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।